Assalamu alaikum. Walaikum Assalam, sir. Today we are doing exercise 4.8. Insha. Okay. So we are doing exercise 4.8. Question number 1. In a given region, the number in thousands in the population age 60 and over is expected to grow according to the equation. So that I will send you the question. Okay. So that question, in a given region, I have sent you the exercise in the group. In a given region, the number triple zeros S, triple zeros means thousands. When it is given the number in the bracket triple zeros, it means thousands. In the population aged 60 and over is expected to grow according to the equation P is equal to 125.5 e raised to power 0.012 t, where t is given in years. So the population is increasing as per the equation. Exercise 4.8, and this is page 165, and we are doing question number 1. The population of a given region is increasing as per the equation P is equal to 125.5 into e raised to power 0.012 into t. T is in years. Now, Mohammed. Albina. So the population is increasing with this equation. If t is equal to 0 at the beginning of 1995, they are starting to find the population from 1995 and t is equal to 0. Calculate the number at the beginning of 1995. So A part, t is equal to 0 at the beginning of 1995. So calculate the number at the beginning of 1995. So A part, when t is 0. So population will be equal to
T is equal to 125.5 e raised to power 0.012 into 0. T is 0. So it will become 125.5 e raised to power 0.012 into 0 will be 0. And any number raised to power 0 will be equal to 1 into 1. So the answer is 125.5 thousands. This population is in thousands. It is given. The number is in thousands. So much thousands was in 1995 because 0 is taken at 1995, at the beginning of the 1995. Okay, Rais Ahmed. Rabiq. Maheen. Aslan Aslam. Okay. So that was the A part. If T is equal to 0 at the beginning of 1995, calculate the number at the beginning of 1995. So the population will be 125.5 thousands. This number is in thousands. B, calculate the numbers in the population at the end of 10, 30, 60, 90, 100 years. So these are the different values of T: 10, 30, 60, 90, 100. So we have to find. So we will not all, we will take one or two mostly. Homework. So T, B part, we have to find when T is 10. 10, 30, 60, 90, 100. We will find the values of T when T is 10, 30, 60, 90, etc. Sundas. Sundas. So first we'll find when T is equal to 10. So P, when T is 10, so P10, we write P10 will be equal to 125.5 e raised to power 0.012 into 10. It will become 125.5 e raised to power 10 into this one, that will become 0.12. Use your calculator to find the value of e raised to power 0.12 and then multiply it with 125.5. You will get the answer. Muhammad Muiz. Excuse me, sir. जी कहिए.
आइए बेटा। जी सर, जब वो ई पे जब जीरो होगा तो सर वो इट मींस के ये रूल है सर कि वो वन हो जाएगा। ई को जीरो ई के ऊपर हो या किसी के ऊपर हो वो वन होता है, ये मैं बता चुका हूँ ना बेटा, लिख के भी दे चुका हूँ, फार्मूले भी लिख दिए थे सब कुछ। अब आप बार बार आप एक ही चीज पूछते रहते हैं। तो इसका ई रेस टू पावर 0.1 किसी भी चीज की पावर जीरो वो वन होता है। तो अब हमने ई रेस टू पावर 0.12 फाइंड आउट करना है, कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें और फिर उसको 125.5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले हम ई की पावर 125.5 फाइंड आउट करते हैं और ये एज इट इज लिख देंगे 125.5 और ई की पावर 0.12 हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं। ई रेस टू पावर सर 1.127 जी 127 1.127। ठीक है बेटा, इसको 125.5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 141.5 आ जाए। यस सर। थाउजेंड्स, ये थाउजेंड्स में है भाई, ये सिर्फ इतनी नहीं है पाप, इतने थाउजेंड हैं ये। तो उसने कहा ये नंबर थाउजेंड्स में है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये 10 हमने रखा था, इसी तरह हम 30 रख देंगे इसकी जगह पर, 60 रख देंगे, फिर 90 रख देंगे और फिर 100 रख देंगे। तो तमाम हमारे पास ये P10 है, ये P30 कर देंगे उसको, फिर P60 कर देंगे, P90 कर देंगे, P100 कर देंगे। तो ये सबके आंसर आ जाएंगे हमारे पास डिफरेंट। साथ है। ओके, तो इस तरह बाकी सबके भी हम फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ का फार्मूला होता है इस किस्म का, कि अनलिमिटेड ग्रोथ है। ग्रो जो हो रही है, कोई पॉपुलेशन है या कोई सेल है या कुछ भी है, तो ये अनलिमिटेड ग्रोथ का फार्मूला है कि जितना टी बढ़ता चला जाएगा वो पी की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स फॉर ए न्यू मैगजीन आर expected to grow according to the equation S is equal to 200,000 into 1 minus e raised to power minus 0.05 t, where t is given in weeks। अब t क्या है वीक्स में, पहले t किस में थे, ईयर्स में था। इस क्वेश्चन में t वीक्स में है। क्वेश्चन नंबर 2, S is equal to, S means the sales, 200,000 into 1 minus e raised to power minus 0.05 t, t in weeks। इस किस्म की इक्वेशन जो है ये कहलाते हैं लिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड नहीं है ये। तो सेल जो है वो हमेशा लिमिटेड ग्रोथ में होती है, कि जितनी हमारे पास अगर हम जैसे ये मैगजीन की बात हो रही है कि मैगजीन सेल्स फॉर अ न्यू मैगजीन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो मैगजीन की सेल की बात हो रही है, तो मैगजीन की सेल जो है वो लिमिटेड ग्रोथ में आएगी, क्योंकि हम अनलिमिटेड कि जितने छाप लें सब बिक जाए, ऐसा नहीं होता। हमारी जितनी पॉपुलेशन है ज्यादा से ज्यादा उतनी बिकेगा वो, उससे ज्यादा नहीं बिक सकता। फर्ज कीजिए एक हमारे कराची की पॉपुलेशन सपोज 21
कितनी है मुझे नहीं मालूम। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है सपोज। अब जब पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है और हम समझते हैं कि हर एक को एक मैगजीन जाएगा, तो मैक्सिमम जो है 22 करोड़ को मैगजीन जा सकता है ना, सबको तो नहीं जा सकता। तो वो लिमिटेड है, उससे ज्यादा छाप लेंगे वो थोड़ा बिकेंगे। हर एक के पास ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना, हर एक ज्यादा से ज्यादा एक एक ले ले, हर शख्स ही एक ले ले। तो ये लिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है ये अनलिमिटेड होती है। ओके, हसनैन असलम सर जी। सही, इसका ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का? नहीं बेटा, ग्राफ व्राफ नहीं हम कर रहे। ओके सर। हारिस खान 1297। ओके, अब इसमें ये तो उसने हमें फार्मूला दे दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड आफ्टर 1 वीक, यानी टी की जगह 1 रख लें। तो उसमें हम देखते हैं कितने मैगजीन सेल हुए हैं। ए पार्ट 20 इज इक्वल टू 1, तो सेल विल बिकम 200,000 into 1 minus e raised to power minus 0.05 into 1. So 200,000 into 1 minus e raised to power minus 0.05. इसको सॉल्व करें। पहले e raised to power minus 0.05 का आंसर निकालें, फिर उसको 1 में से माइनस करें, फिर 200,000 से मल्टीप्लाई करें। 200,000 एज इट इज लिख दिया, ये हमने 1 लिख दिया, इसकी वैल्यू हम यहाँ निकाल दें। जी क्या आंसर आएगा? 0.951। 0.951 ये आ गया भाई। इसको 1 में से माइनस कर दें। 1 में से माइनस कर दें। सर माइनस 0.048। नहीं नहीं, माइनस नहीं आएगा बेटा, ये खुद माइनस है। ये 1 में से सॉरी माइनस होगा सर। तो पॉजिटिव आएगा। जी क्या आएगा? तो 0.049। 0.049 ये आ गया था। इसको 200,000 से मल्टीप्लाई कर दें। $9800। 9800 इतने मैगजीन हम फर्स्ट वीक के एंड में सेल कर सकते हैं। फर्स्ट वीक के एंड तक कितने मैगजीन सेल हो जाएंगे हमारे पास? 9800। ये पार्ट था। बी पार्ट में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड आफ्टर 5 वीक्स, 20 वीक्स, 35 वीक्स, 45 वीक्स, 50 वीक्स, 52 वीक्स। तो डिफरेंट वीक्स पर है बी पार्ट। when t is equal to 5, 20, 30, 5, 20, 35, 45, 50, 52, तो पहले हम 5 वीक का ले लेते हैं, तो S5 हम इसको लिख देंगे। तो ये 200,000 इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 0.05 और t की जगह 5 पुट कर, तो ये हो जाएगा 200,000 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 0.25, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो -0.25। इसका आंसर ले लें 1 माइनस e⁻⁻0.25। इसका आंसर ले लें। $0.77। 0.77। 1 में से माइनस कर दें 200,000। 1 माइनस 0.77 तो 0.23 आ जाए। इसको 200,000 से मल्टीप्लाई कर दें 46,000। 46,000। तो इतने ये मैक्स वो आ गया भाई 46,000। ये हमारी सेल्स होगी 5 वीक्स के बाद। और 35 वीक्स के बाद देखें, 45 वीक्स के बाद देखें तो ये हमारी सेल आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमने 5 से निकाला। आप जो है 20 से, 35 से, 45 से, 50 और 52 से आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आए। और जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा। ये क्योंकि लिमिटेड ग्रोथ का क्वेश्चन है तो इसका ग्राफ मैं बना के बताता हूँ। ये कुछ इस किस्म का बनेगा। ये ऊपर जाएगा। ये 0 जब था, अगर हम 0 ले तो ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0 वीक ले, t की जगह 0 ले तो 0.05 इंटू 0 विल बी 0। e⁻0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। व्हेन t 0, अगर यहाँ हम पर t ड्रॉ करें और यहाँ हम s सेल्स, तो t 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और फिर ये ऐसा होगा कि बढ़ेगा 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 और फिर ये आखिर कम होना शुरू हो जाएगा। इस शेप का इसका ग्राफ बनेगा। तो ये होते हैं लिमिटेड ग्रोथ के। अच्छा, जो पहले हमारा क्वेश्चन था अनलिमिटेड ग्रोथ का, पॉपुलेशन वाला था, उसका अगर ग्राफ मैं ड्रॉ करूं तो सर ग्राफ एक्सक्यूज मी, इस किस्म का बनेगा, बढ़ता चला जाएगा। वो इस किस्म का ग्राफ बनेगा। यहाँ सर हमारे पास टी होगा और यहाँ हमारे पास पॉपुलेशन है और इसमें सेल्स है। ये इस किस्म का ग्राफ बनेगा। एक हाइट पर जाकर फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह ग्राफ इनके बनेंगे। ये अनलिमिटेड वो ग्रोथ का है तो बढ़ता चला जाएगा, कहीं उसकी इंतहा नहीं है। लेकिन ये एक ऊंचाई तक बढ़ेगा फिर उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब पूरे हर एक को हम मैगजीन सपोज दे रहे हैं तो जब हर एक को एक मिल जाएगा तो फिर दोबारा तो बूस्ट थोड़ा लेगा उस साल में। ये लिमिटेड ग्रोथ होता है। लिमिटेड तक यहाँ तक जाएगा फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह हमने 5 पे निकाला है, आप 20 पे, 35 पे, 45 पे, 50, 52 पे आप निकाल सकते। और जब सब निकल आएंगे तो फिर आप उसका चाहे तो ग्राफ ड्रॉ कर ले, चाहे तो ना करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। A virus is thought to spread through a chicken form according to the equation। चिकन फॉर्म में जो है ये वायरस एक आ रहा है, आया हुआ एक वायरस चिकन फॉर्म में। उसकी इक्वेशन जो है वो ये है कि किस तरह वो इन्फेक्ट कर रहे हैं बर्ड्स को, चिकन्स को। n is equal to 800
into 1/1 plus 790 e raised to power -1 नहीं -0.1 into t n is equal to 800 into 1/1 plus 790 into e raised to power -0.1 t, where n is the number of infected chickens, t is in days. t जो है पहले क्वेश्चन में ईयर्स था, दूसरे क्वेश्चन में वीक्स था, इस क्वेश्चन में डेज है, क्योंकि जब कोई बीमारी आती है इंसानों में, चिकन में, वो तो हर दिन के हिसाब से बढ़ती है। आज इतना, जैसे आजकल हमारे यहाँ कोरोना आया हुआ कोविड-19, तो क्या डेली के डेली वो बताते हैं कि आज इतने वो इन्फेक्ट हुए, आज इतने मरीज आए, आज इतने मरीज आए, आज इतने फौत हुए, तो पर डे के हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी चूंकि चिकन फॉर्म का है तो वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं चिकन, तो उसका भी पर डे के हिसाब से, तो टी जो है डेज में है। कैलकुलेट हाउ मेनी चिकन्स आर इन्फेक्टेड एट t इज इक्वल टू 0। व्हेन t 0 होगा तो चिकन जो है कितने इन्फेक्टेड होंगे। हाउ मेनी चिकन्स आर इन्फेक्टेड एट t इक्वल टू 0, तो ए पार्ट में t इक्वल टू 0, तो n कितना हो जाएगा 800 into 1/1 plus 790 e raised to power -0.1 -0.1 into 0, t जो है 0 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 800 into 1/1 plus 70 e raised to power 0.01 into 0 will be 0. 800 into 1/1 plus 70 into 1 e raised to power 0 क्या होगा 1 होगा। सर 790 है जी सर, 790 ये 70 हाँ ठीक है, 790 है ये। into 1 e raised to power 0 का क्या होगा 1, तो 790 into 1 will be 790 और प्लस 1 1/1 plus 790 800 into 1/791, इसको सॉल्व कर लें आप। 80 into 1, 800 into 1 will be 800 upon 790, 800 upon 791, तो क्या आंसर आया भाई 1.011 1.01, ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सर 1.011 011 यस सर 9 भी है। नो सर अच्छा 1.01137 37, चलिए ठीक है, 3 डेसिमल तक कितना आ गया। तो इतने जो है जब हमने चेक किया पहले दिन, जब हमें पता, हमने एक दिन अचानक चेक किया तो पता चला एक, सपोज हमारे पास एक चिकन जो है वो इन्फेक्टेड है, तो जब उसके बाद हमने काउंट करना शुरू किया, उस दिन t 0 था, जब हमें पता चला कि एक चिकन इन्फेक्टेड है हमारा, तो उसके बाद हमने फिर t की वैल्यू डिफरेंट लेकर हम डेली की बुनियाद पर हम चेक करेंगे, 1 वीक, एक दिन के बाद क्या नतीजा निकला, 2 दिन के बाद क्या नतीजा निकला, 3 दिन के बाद क्या नतीजा निकला, तो फिर वो t होगा। तो 0 पर जब t 0 था तो इतना चिकन इन्फेक्टेड थे।
उसके बाद फिर वही क्वेश्चन है बी पार्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चिकन इन्फेक्टेड आफ्टर 0, 20, 40, 60, 80, 100 डेज। तो बी पार्ट में हमारे पास डिफरेंट वो है, तो बी पार्ट हम करते हैं। तो 0, 20, 40, 60, 80, 100 डेज तक उन्होंने इसको नोट किया है। अब हम इस पे 0 का तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 1.011 आ गया था। अब हम 20 पर लेते हैं। 20 इज इक्वल टू 20, तो हम n20 ले लेते हैं। 800 इंटू 1/1 प्लस 790 e raised to power minus 0.1 into 20. It will become 800 into 1/1 plus 790 e raised to power 2 minus 2. 20 डेज के बाद e raised to power -2 हो गया। इसको सॉल्व कर ले बेटा। 800 into 1/1 plus 790 into e raised to power -2 का आंसर निकालें। तो 0.135। 0.135। यस सर। अब 790 से इसको मल्टीप्लाई कर ले। 106.91। 106.914। 914। 1 इसमें ऐड कर दें 107 हो जाएगा। 800 इंटू 1/107.914। अब 800 को इससे डिवाइड कर दें। इट इज 800 डिवाइडेड बाय 107.914। क्या आंसर आ गया हो? ऑलमोस्ट 7 आ जाएगा शायद। 7.413। 7.413। 13। यस सर। So this is the answer. तो आफ्टर 20 डेज जो है ये इतना आंसर है, इतने चिकन जो इन्फेक्ट होगा। इसी तरह हम 40 पर निकालेंगे, 60 पर निकालेंगे, 80 पर निकालेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे। इसमें कोई ग्राफ नहीं होगा है। विल ऑल द चिकन बिकम इन्फेक्टेड इवेंचुअली? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो क्या तमाम चिकन जो है इन्फेक्ट हो जाएंगे? तो ये 100 डेज तक हम देखेंगे। उसके बाद 100 डेज तक आप देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे कि कितने चिकन इन्फेक्ट होते हैं। उसके बाद हम उससे प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये पूरे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो पूरे नहीं होंगे अमूमन। तो ये हमारे पास आंसर इस तरह हमने 20 पर निकाला, 40 पर, 60 पर, 80 पर, 100 पर आपने और फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक्सरसाइज थी हमारी 4.8। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे। उसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 4.9 हम करेंगे, लेकिन ये लॉगिक है। तो पहले मैं आपको लॉग बता दूं, लॉग होता क्या है। लॉग होता क्या है? लॉग है पावर। अभी हम एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, ये उसी से रिलेटेड है लॉग भी। तो लॉग होता है पावर एक्चुअल। दिस इज द पावर ऑफ एनी नंबर।
logarithm. Safwan bin Jafar. तो logarithm is the power of any base. किसी भी बेस की पावर यानी किसी नंबर की पावर जो है वो लॉग कहलाती है, पावर को हम इंडेक्स को लॉग कहलाते हैं। जैसे 4 जो है ये 2⁻² है, या 8 कर ले, सपोज 8 है हमारे पास, 16 है। अगर इसको 2 के बेस 2 की पावर में लाएं तो ये हो जाएगा 2⁻4। तो ये क्या पावर है, 4 है, तो 4 इसका लॉग होगा और बेस उसका 2 होना चाहिए। लॉग ऑफ 4 16 हम ले रहे हैं बेस 2 पर, तो आंसर हमारे पास 4 होगा। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 16 बेस 2 है तो इसका पावर जो है वो 4 है, तो ये log 16 है 4 आ जाएगा। log 16 क्या है, 4 हो जाएगा, जबकि बेस हमारे पास 2 था। ये बेस यहाँ लिखा जाएगा log के, और जिस नंबर का हम log ले रहे हैं वो यहाँ सामने आएगा बड़ा, बेस जो है नीचे छोटा आएगा, फिर इक्वल करके हम लोग log की वैल्यू डाल देंगे। log की वैल्यू 4 आएगी, 16 के log 4 होगा जब बेस हमारे पास 2 होगा। लेकिन अगर 16 को ही, नंबर वही है हमारे पास, इसका बेस 4 कर लेते हैं तो 4 की पावर 2 जो है वो 16 होता है। 4⁻² इज इक्वल टू 16। अगर हम लॉग ले 4 की बेस पर 16 का ही, लॉग ऑफ 16 बेस 4 है, तो फिर आंसर 2 हो जाएगा। देखिए आंसर चेंज हो गया, आंसर हैज बीन चेंज। तो आंसर तब्दील हो जाता है, अगर बेस चेंज हो जाए तो आंसर भी चेंज हो जाता है। तो ये याद रखिए, तो ये किसी बेस की पावर होता है। लॉग जो है दैट इज द पावर ऑफ सम बेस, पावर ऑफ सम बेस, दैट इज द लॉग। किसी बेस की पावर जो है वो लॉग कहलाती है। अच्छा, अब हम लॉग, हम जो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास 2 किस्म के लॉग होते हैं। कैलकुलेटर से हम फाइंड आउट करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ